Assalamu alaikum. I am Uruz Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I have come back with the three spoken structure or the tenses past के जो अक्सर इंसानों को परेशान रखते हैं यानी आप सभी स्टूडेंट्स को आइए इन्हें वन बाय वन सीखते हैं. Yes, without taking any pause, we need to start this video. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं and if you have not subscribed my channel yet, just go there, subscribe it and as well as press the bell icon in order to get the notification at first. Past simple. Past simple, it's commonly used in English spoken around 80%. Your 80% coverage of the past tenses are covered by past simple tense. The basic formula of making this kind of the sentences would be like this one. Subject, verb second form and object. You don't need to add any was and were in the past. It means if you are just learning the past simple, it means your 80% coverage will be handled by past simple tense. Just a simple format will be applied over here. For example, कोई काम हुआ, कोई काम किया, कोई काम हुआ किया, बस ऐसे लाइक हम कोई रैंडम बात कर रहे हैं कि कल मैंने ये किया, एक साल पहले मैंने ये किया, एक महीना पहले मैंने ये किया. यही कोई भी काम जो बाकायदा तौर पर हुआ, बस उसके बारे में कोई मजीद इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है. एक जेन्युइन कवरेज आपको दे रहा है, इसको कहते हैं पास्ट सिंपल. आइए से सीखते हैं. सबसे पहले मेरा दोस्त मार्केट गया, माई फ्रेंड. अब गो की सेकेंड फॉर्म वेंट है, दैट्स व्हाई आई विल अप्लाई वेंट ओवर हियर. माई फ्रेंड वेंट मार्केट. मेरा दोस्त मार्केट नहीं गया. इफ आई वुड लाइक टू मेक द नेगेटिव ऑफ दिस वन, सो माई फ्रेंड डिड नॉट. My friend did not, and did not is the representation of the past tense. In the present we use do and does, but in the past we have to use did not. And whenever the did not come, so the second form of the verb gets converted into the verb first form. Go market. My friend did not go to market. As well as I can make the thousand of the sentences like this. मैंने AC installed किया. I installed the AC. हमने वीडियोस बनाई, वी मेड द वीडियोस. हमने कनाडा के लिए अप्लाई किया, वी अप्लाइड फॉर द कनाडा. और एनीथिंग एल्स यू कैन मेक द थाउजेंड ऑफ द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द सिंपल फॉर्मेट बाय हैविंग द सेकंड फॉर्म. इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं. मैंने जवाब दिया, आई रिस्पॉन्डेड कर लीजिए. आई आंसर्ड और एनीथिंग. आई रिस्पॉन्डेड, आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड. आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड मीन्स मैंने कोई जवाब नहीं दिया. आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड. बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने एक नया सबक शुरू किया, दे स्टार्टेड द न्यू लेसन. नहीं किया, दे डिड नॉट स्टार्ट द न्यू लेसन. It means your all coverage of the past is getting cleared by having the past simple tense, so you don't need to move for past progressive and past perfect. But we are here to make the difference between or among the all of them. So आइए इन्हें one by one हम सीखते हैं. Past simple gave the 80% coverage, like they provided us the 80% concept of the past. तो past progressive क्या है? Past progressive shows the any action that was going on at a specific time. At a specific time. What does it mean? Specific time means if I talk about the yesterday or the yesterday's routine, so at 4 o'clock I was eating food. If I just be so much specific about doing any action कि मैं तो 4 बजे ये कर रहा था, कर रही थी, मैं खाना खा रहा था, I am too much specified. I'm not the generalized one. I'm not using the general way of communication. I am getting from general to specification. This called is the general way. आपने कोई काम किया, हमने ईद मनाई, हमने नमाज पढ़ी, बट मैं तो नमाज पढ़ रही थी एंड आई एम गोइंग टू मेक माई एक्शन मोर पर्टिकुलर अबाउट द टाइम. तो उसको कहते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव एट ए स्पेसिफिक टाइम. फॉर एग्जाम्पल, बच्चे रो रहे थे. चिल्ड्रन वर क्राइंग. बिकॉज ऑफ द प्लूरल आई विल यूज द वर्ड ओवर हियर. चिल्ड्रन वर क्राइंग, बच्चे रो रहे थे. मैं तुम्हें समझा रही थी. आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड. आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा रही थी. वो लोग आपको नज़रअंदाज कर रहे थे. दे वर इग्नोरिंग यू. इट मीन्स एनी एक्शन एट अ स्पेसिफिक टाइम वॉज गोइंग ऑन एंड वी मस्ट नो अबाउट इट एंड वी हैव द नॉलेज. लाइक दैट काइंड ऑफ द एक्शन वॉज गोइंग ओवर हियर एट अ स्पेसिफिक टाइम. तो फिर हम क्या कहेंगे? पास्ट प्रोग्रेसिव. इफ आई टॉक अबाउट माई येस्टरडेज रूटीन, सो आई वॉज स्लीपिंग एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग. मैं सुबह 10 बजे सो रही थी, वरना मुझे क्या ज़रूरत पड़ी ये बताने की मैं 10 बजे क्या कर रही थी. अगर मुझसे को पूछे कि कल आपने क्या किया, तो फर्स्टली हम किसी मेजर रूटीन की तरफ जाते हैं. कल के दिन मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया. I completed my assignment. But if someone would like to ask a question about the specific activity that I performed at a specific time, आप 10 बजे क्या कर रही थी? I was sleeping at 10 o'clock. So इसको कहते हैं एक खास वक्त पर आप कोई काम कर रहे थे. That's called past progressive, and this is just the past of present progressive.
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का पास्ट होता ही है। मैं एसी इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं एसी इंस्टॉल कर रहा था, दैट्स कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव एंड यू मस्ट नो अबाउट इट। द इज एम आर गेट कन्वर्टेड इनटू वाज एंड वर इफ आई टॉक अबाउट द पास्ट। Is, am and are. You know that all the are convert into were and is and am are taken place by was. आइए डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट। कोई काम हो चुका था, ये भी पास्ट टेंस का वो कंसेप्ट है जिसमें एक खास वक्त की तरफ इशारा किया जा रहा है। मतलब कुछ यूँ है कि अगर मैं सिर्फ पास्ट सिंपल हटा दूँ तो ना तो ये टेंस अपनी असल हालत में बाकी रहेगा ना ये रहेगा। इन दोनों की बेस इस पर होती है और बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर मैं आपसे यूँ कहूँ द नेचर ऑफ द पास्ट परफेक्ट इज़ वॉलेटाइल, टिक ही नहीं सकता, ठहर ही नहीं सकता ये जुमला जब तक इसके साथ ये ना हो या ये ना हो। अगर मैं इसको मज़ीद आसान कर दूँ यानी नैरो डाउन कर दूँ, पास्ट प्रोग्रेसिव फिर भी बिना किसी और टेंस के साथ कंबाइन हुए चल सकता है, लेकिन ये टिक ही नहीं सकता। इसकी क्या वजह है, आइए सीखते हैं ज़रा। मैंने तो बस एक सेंटेंस लिख दिया, समझना आपका काम है। व्हेन आई केम हियर, ये बता रहा है ज़माने मादी, लाइक इट इज़ इंडिकेटिंग अबाउट द पास्ट। जब मैं आया, सेकंड फॉर्म, जब मैं आया, तुम तो जा चुके थे। अगर मैं इसको कुछ आसान करूं, मेरे आने से पहले तुम्हारा जाना कंफर्म हो गया था। पास्ट का पास्ट है ये टेंस, यानी अगर ये ना होता तो मुझे ये बताने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर हम दो काम को यानी दो एक्शन को एक साथ कंपेयर करते हैं, सो इन द फॉर्म ऑफ द कंपैरिजन इट इज़ आर इनकम्बेंट टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द पास्ट सिंपल विद पास्ट परफेक्ट। अगर मुझे दो काम बताने हैं तो उन दो कामों में से कोई एक तो पहले हुआ होगा। सो एनी एक्शन दैट हैड परफॉर्म्ड बिफोर देन द एक्सपेक्टेड टाइम, तो फिर हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही मैंने टिकट्स खरीदे और बस मैं निकलने वाली थी एयरपोर्ट के लिए, तो मैंने टिकट्स ले लिए थे और ज़ाहिर है मेरी फ़्लाइट की मिसाल दे रही हूँ। तो अब मैं निकलने वाली थी। जब मैं घर से निकली तो मेरा सामान ऑलरेडी भाई ने उठा लिया था। मेरे निकलने से पहले ही भाई ने मेरा सामान उठा लिया था, इसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट। उठा लिया था, पास्ट परफेक्ट। मेरा निकलना जो था वो इस सेंस में था कि जब मैं निकलती तो सामान भी लेके चली जाती, बट उन्होंने मुझसे पहले ही मेरे सामान को कैरी कर लिया। इसको मज़ीद आसान कर लेगा ना। मैंने वालदा से कहा कि मैं तकरीबन 8 या 9 बजे के करीब घर आऊँगी, तो आप रेडी रहिएगा, हम कहीं बाहर चलेंगे। एंड व्हेन आई एंटर्ड इन द होम शी हैड स्लेप्ट, वो तो सो चुकी थी, यानी मैंने उन्हें जो टाइम दिया उससे पहले ही वो सो चुकी थी। यानी इस टेंस को कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। ये टेंस उस वक्त ज़रूरी होता है जब इसके साथ एक कंडीशन लगी हो। अगर कंडीशन ना हो तो पास्ट परफेक्ट भी नहीं आता। हम स्कूल में पढ़ते हुए आए हैं, बच्चे सो चुके थे, हम जा चुके थे, ज़रूरत नहीं है बताने की। अगर आपने कंडीशन नहीं अप्लाई करनी तो आप इसमें बताइए, बच्चे सो गए, चिल्ड्रन स्लेप्ट। बच्चे सो चुके थे जब मैं आई, व्हेन आई एंटर्ड तो पास्ट सिंपल, देन इसके साथ ये व्हेन आई एंटर्ड, चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। सो द यूजेज ऑफ द पास्ट परफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द पास्ट सिंपल एज वेल एज पास्ट प्रोग्रेसिव। You can combine this tense with as well with it. For example, I was going on the road, मैं रोड पर जा रही थी, but my brother had left me, मेरा भाई उस वक्त मुझे छोड़ के जा चुका था। मतलब जब मैं रोड पर जा रही थी तो मेरा भाई उस वक्त मुझसे पहले ही छोड़ के जा चुका था। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि when I was insisting you to stay here, जब मैं आपसे जिद कर रही थी कि आप रुक जाओ, they had closed the all doors of cinema, वो लोग सिनेमा के दरवाजे ही बंद कर चुके थे। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन, डिपेंड कि एक कंडीशन लग रही है। सो द कंडीशन कुड बी अबाउट द पास्ट सिंपल एज वेल एज द पास्ट प्रोग्रेसिव, बट याद रहे कि पास्ट परफेक्ट खुद से कभी इस्तेमाल नहीं होता। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड देन आपसे मुलाकात होती है एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।